Hello everyone. Today I am going to discuss about the cardiac cycle. In the previous lecture, I have already discussed about the structure of heart, physiology of heart, blood vessels and conducting system of heart. So our next topic is cardiac cycle. Okay, so before understanding about the cardiac cycle, we should know about the conducting system of heart. So we have already studied in the previous lecture about the conducting system of heart. So first we define the cardiac cycle. So cardiac cycle may be defined as a one complete cycle of atrial and ventricular systole and diastole. Okay, so what do you mean by the cardiac cycle? Cardiac cycle is a cycle which includes both atrial and ventricular systole and diastole. So what do you mean by the word? You know the atria and ventricles. These are the chambers. These are the four chambers of heart: auricles or atria and ventricles. Okay, and you know the conducting system of heart. We have already studied about the conducting system of heart. Conducting system of heart consists of different components are there. Different components are there. How? I just make a rough diagram. See here in this manner. These are the auricles and these are the ventricles. These are the ventricles. What happened in the so I am explaining this conducting system because we should know about the conducting system. Then only we are able to understand about the cardiac cycle, because it includes the contraction and relaxation of both atria and ventricle. So how this contraction and relaxation takes place, we have to understand this. So in the conducting system of heart, there is present a SA node, the group of cells. What is SA node? SA node are the group of cells which are self excitable, means they will cause the they will generate the impulse or they will cause the excitation, yes, automatically. So the group of self excitable cells is known as a SA node. From here the impulse generate, यहाँ से क्या होगा, impulse generate होगी in this manner, impulse generate in this manner. And from this what happened, then next it reaches to the AV node. Here the group of cells is known as a AV node. AV node. This is SA node. SA node means sinoatrial node. Sinoatrial. Sinoatrial. AV means atrioventricular. Atrioventricular. Okay, so what happened, when the signal comes from the SA node, it will produce the signal. Okay, conduction, it will cause the conduction. Then the signal reaches towards the AV node. AV node, from AV node, now what is the need? What is our need? Our need is that we didn't want that both the atria and ventricles will contract साथ में हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स वो साथ में कॉन्ट्रैक्ट करें. सो वी नीड अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ टाइम, अ लिटिल डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स. सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 0.1 सेकेंड. मीन्स द व्हेन द ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज यहाँ पर जब आपका इम्पल्स जा रहा है, मैसेज जा रहा है, तो पहले आपका क्या होगा, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, देन द इम्पल्स रीचेस हियर. एक चीज और याद रखनी है आपको, हियर इज प्रेजेंट, here is present a fibrous pericardium, a layer of fibrous pericardium. Here is present fibrous pericardium. Fibrous pericardium. और ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम की लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग है हार्ट की, वो अंदर तक इस तरह से प्रेजेंट होगी, इस तरह से. ओके, नाउ व्हाट हैपन, जो भी आपका इम्पल्स जा रहा है वो इस तरह से जाएगा. इट विल नॉट क्रॉस फ्रॉम हियर बिकॉज ऑफ दिस फाइब्रस पेरिकार्डियम की जो लेयर है, इसकी वजह से वो यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगा. इस तरह से आपका जो इम्पल्स है वो इस तरह से पास होगा. फ्रॉम द मिडिल इट विल पास. नाउ between this when now here when the signal comes here, AV node slows down. So AV node is known as a pace setter. And SA node is known as a pacemaker. So when the auricles contract, then after 0.1 second, means the auricles contract for 0.1 second, then after the ventricles get started contracting.
ठीक है, पहले क्या होगा, गैप हो जाएगा, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 0.1 सेकंड, जब जैसे कि ऑरिकस का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उसके बाद में 0.1 सेकंड का गैप होगा, विच इज ड्यू टू द एवी नोड की वजह से ये गैप होगा 0.1 सेकेंड का, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ पेस सेटर, वो जो इंपल्स है उसको सेट करके रखेगा। नाउ इट सेंड द सिग्नल टुवर्ड्स टू द वेंट्रिकल्स। नाउ सिग्नल कहाँ जाएंगे, आपके वेंट्रिकल्स की तरफ आ जाएंगे सिग्नल। इसके बाद में क्या हो जाएगा, 0.1 सेकंड का गैप है, उसके बाद में क्या होगा, सिग्नल्स कहाँ आएंगे, आपके वेंट्रिकल्स की तरफ सिग्नल आएंगे इसमें। नाउ जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और ये जो कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल है वो हमेशा बीच में से आएंगे, इट विल नॉट कम्स फ्रॉम द साइडवेज। ओके, नाउ हियर आ जाएंगे, यहाँ पर आपके बंडल प्रेजेंट है, बंडल ऑफ हिज है, बंडल ब्रांचेज है, एंड देन Purkinje fibers, these are the Purkinje fibers, ठीक है। the signal reaches to the ventricles. How it will possible, the signal reaches from AV node towards the bundle of his में जाएगा आपका, ये bundle of his है, ओके। then bundle of his की दोनों ब्रांचेस में जाएगा, these are the two branches, यहाँ पर सिग्नल जाएगा, इस तरह से यहाँ सिग्नल जाएगा, देन आफ्टर इट रीचेस टू द Purkinje fibers, सिग्नल रीचेस टू द Purkinje fibers, okay. So in this manner, then what happened, the contraction takes place in the ventricles. So first of all, auricles contract, then the signal reaches to ventricles, and then ventricles get contracted, okay. Now come to the cardiac cycle, okay. Cardiac cycle, so we can define as cardiac cycle as a वन कंप्लीट साइकिल, इट इज अ वन कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल है ऑफ एट्रियल, इसमें क्या होगा आपका एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का सिस्टोल और डायस्टोल दोनों जब हो जाएगा एक साइकिल में, इट इज नोन एज अ कार्डियक साइकिल। सिस्टोल मींस हियर, सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन। Okay, so what happened in the starting, see here, these are the auricles and these are the auricles, right auricle, left auricle, right ventricle and left ventricle. As you all know, our heart consists of 4 chambers or 2 auricles and 2 ventricles in this manner. These are the valves. These valves are tricuspid valve and bicuspid valve. Here also present a valve. These valves are known as a semilunar valve. These are atrioventricular valve. And these valves are known as semilunar valve. Okay, now in starting what happens, these 2 valves are closed, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा, ये दोनों जो वॉल्व है वो क्लोज रहेंगी, ठीक है। these valves are closed, अभी यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, कोई रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है। we know that from here blood supplies from here through inferior and superior vena cava. inferior और superior vena cava से यहाँ पर blood आ रहा है, यहाँ से, ठीक है, कंटिन्यूसली आ रहा है राइट ऑरिकल में। एंड फॉर द सेम फॉर द लेफ्ट ऑरिकल ऑल्सो, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड कहाँ से आ रहा है, आपका लंग से आ रहा है, ठीक है, प्योर ब्लड लंग से, फ्रॉम लंग से इसमें आ रहा है। और यहाँ पर क्या है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, यहाँ से ब्लड आपका कंटिन्यूसली आ रहा है। एंड वी नो डेट ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ऑलरेडी जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी इसमें वेंट्रिकल्स खाली तो होती नहीं, यहाँ पर पहले से ब्लड भरा हुआ होता है, तो यहाँ पर पहले से कुछ ब्लड भरा हुआ है, ये आपका होता है अबाउट 60 ml होता है आपका, ये आपका ब्लड भरा हुआ है, यहाँ पे इतना ब्लड भरा हुआ है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन कि कंटिन्यूअसली ब्लड आ रहा है, इसमें यहाँ ब्लड भरता जा रहा है पूरा,
यहाँ पर ये ऑरिकल्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, भरते जा रहे हैं। अभी वॉल्व क्लोज्ड है, ठीक है, वॉल्व आपकी क्लोज्ड है। स्टार्टिंग में क्या होगा, इन द स्टार्टिंग वॉल्व्स आर क्लोज्ड, ये वॉल्व्स आपकी क्लोज्ड है स्टार्टिंग, इन स्टार्टिंग, ठीक है, ये वॉल्व क्लोज्ड है आपकी। अब क्या होगा कि भाई ब्लड तो आता जा रहा है इसमें, जैसे ही ब्लड आएगा, ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड भरा हुआ है, जैसे ही ब्लड आएगा तो ड्यू टू प्रेशर, नाउ प्रेशर जनरेट, व्हाट हैपेंस, प्रेशर जनरेट, प्रेशर जनरेट ऑन वॉल्व, जो आपकी ये जो आपकी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, इनमें क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। तो प्रेशर जनरेट होने की वजह से क्या होगा, ये वॉल्व खुल जाएंगी, वॉल्व खुलेंगी और जो ब्लड है वो यहाँ आ जाएगा। सपोज इस तरह से यहाँ पर ब्लड आ गया, यहाँ से जो अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, बिफोर कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू प्रेशर ऑफ ब्लड, द ब्लड कम्स टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स थ्रू दीज वॉल्व्स। यहाँ पर आ रहा है ब्लड, ये ब्लड आ रहा है यहाँ, ठीक है, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। ये ऑलरेडी भरा हुआ है, ये क्या है आपका, ऑलरेडी भरा हुआ है, ऑलरेडी फिल्ड, ठीक है। अब यहाँ ये क्या है, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन ब्लड आया इसमें, अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है इसमें। अब जैसे क्या होगा, ऐसे नोड का सिग्नल मिलेगा, ऐसे नोड में क्या होगा, इंपल्स जनरेशन होगी, नाउ सिग्नल पासेस टुवर्ड्स द एवी नोड, तो क्या होगा, आपके ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से देन अगेन वॉल्व ओपन एंड ब्लड आएगा। अब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फिर ब्लड आएगा इसमें, सी हियर, यहाँ पर फिर ब्लड आएगा, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी फिल्ड एंड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ये जो ब्लड आया यहाँ पर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपकी तीनों लेयर हो गई ब्लड की इस तरह से कि ये जो आपका ऑलरेडी फिल्ड ब्लड है, फिर विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, बिना कॉन्ट्रैक्शन इसमें ब्लड आया है, ड्यू टू प्रेशर, जो प्रेशर जनरेट हुआ उसकी वजह से ब्लड आया है, और ये आपका जो ब्लड है ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आया है। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट, जब इसको जैसे सिग्नल मिलेगा, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, एट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो हम इसकी फेजेस लिख लेते हैं यहाँ। तो फर्स्ट है आपका इसमें, जैसे ऐसे नोड सिग्नल देगा, व्हेन द ऐसे नोड गिव सिग्नल और पासिस द सिग्नल आफ्टरवर्ड्स, तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें फर्स्ट इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ओके। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, आपका जो आपके ऑरिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये इसको बोल सकते हैं हम एट्रियल सिस्टोल बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अ एट्रियल सिस्टोल, ओके। ड्यूरेशन ऑफ दिस एट्रियल सिस्टोल कितना था, 0.1 सेकेंड, इट्स ड्यूरेशन इज 0.1 सेकेंड। तो पहले आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। नाउ एट्री आपके क्या हो जाएंगे, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड आपका वेंट्रिकल्स में चला गया, उसके बाद में वो क्या हो गया, रिलैक्स हो गए। नाउ एट्रियल रिलैक्सेशन हो गया। देन नेक्स्ट, नाउ अब ब्लड कहाँ आ गया, आपका वेंट्रिकल्स में आ गया। अब सिग्नल जैसे ही आपके नीचे पहुंचेगा, वेंट्रिकल्स की तरफ पहुंचेगा, देन क्या होगा, वेंट्रिकल्स क्या होंगे आपके, वन मोर थिंग हियर, अब सिग्नल आपके जैसे डाउन साइड जाएंगे तो क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो व्हाट हैपेंस, जैसे ही आपके इसमें वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे, यहाँ पे आपके, सी हियर, यहाँ पर ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड नीचे आया यहाँ पे, ठीक है, फिर वो रिलैक्स हो गए। अब क्या होगा, इसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे, तो ब्लड कहाँ जाएगा, इन वॉल्व्स के थ्रू जाएगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ओके। तो पहली वाली जो आपकी है, ये जो वॉल्व है, यहाँ से क्या आपका इम्प्योर ब्लड जा रहा है, वो आपका कहाँ से जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका कहाँ जाएगा, प्योर ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा। तो ये जो सेमिन्यूलर यहाँ पर वॉल्व बनी होती है, ओके, तो इनके थ्रू ये वॉल्व ओपन हो जाती है और ब्लड आपका पास हो जाता है इसमें,
ओके, सो दिस इज वेंट्रिकुलर। हाँ, यहाँ पर एक चीज और यहाँ पे भी, जैसे आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे आपके, देन देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट दिस ब्लड मे पास अगेन थ्रू दीज वॉल्व, ओके, बट these at that time these valve will get closed। उस टाइम पे क्या हो जाएंगी, यहाँ पे जो ब्लड है वो दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फ्रॉम पहले, सबसे पहले वो यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, उसके बाद वो यहाँ से जाएगा, बट ये जो वॉल्व है वो फटक से क्लोज हो जाएंगी, तो यहाँ पे एक साउंड आएगा, उसको हम बोलते हैं लब। ठीक है, कब आता है आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ द ओपनिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, बट वहां पर वो क्लोज हो जाएंगे, तो ए बी वॉल्व क्लोज्ड, ए बी वॉल्व क्लोज हो जाएंगी, क्लोज होने की वजह से उसमें एक आवाज आएगी विच इज नोन एज अ लब आवाज आएगी उसमें। ओके, नाउ दिस एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व गेट क्लोज्ड, सो द ब्लड हैज टू पास थ्रू सेमिलुनर वॉल्व्स, जो आपकी सेमिलुनर वॉल्व्स है, यहां से आपका ब्लड पास हो जाएगा। ओके, तो दिस इज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोल सकते हैं इसको, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नेक्स्ट है इसमें वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, फोर्थ इज वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। और व्हाट हैपन, ब्लड पास हो गया, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, देन ब्लड पासेस थ्रू सेमिलुनर वॉल्व्स टू द लंग्स एंड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देन आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, वो वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे, आपके ब्लड पास करने के बाद रिलैक्स होंगे, देन देयर ड्यू टू रिलैक्सेशन देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट द ब्लड कैन कम बैक थ्रू द सेमिलुनर वॉल्व। ओके, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो ब्लड है वो दोबारा से इसमें बैक फ्लो हो जाए, लेकिन उस टाइम पे क्या होगा, एट दैट टाइम दी सेमिलुनर वॉल्व गेट क्लोज्ड, तो उस टाइम पे जो आवाज आएगी वो आएगी डब। नाउ सेमिलुनर वॉल्व गेट क्लोज्ड। ठीक है, तो यहाँ साउंड कौन सा आएगा आपका, डब साउंड आएगा, हर्ट साउंड भी यहाँ पे हमने समझ लिया। ठीक है, तो दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल, आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट आल्सो, ड्यूरेशन आल्सो, क्या क्या ड्यूरेशन है इसका। सो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, फर्स्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा 0.1 सेकंड के लिए, देन एट्रियल रिलैक्सेशन होगा, एट्रियल रिलैक्स हो जाएंगे, उसके बाद में देन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और फिर उसके बाद में वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे। ओके, नाउ वी ड्रॉ द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। ड्यूरेशन of cardiac cycle, नाउ ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल हम इसमें एक पाई चार्ट बना लेंगे इस तरह से। सो फर्स्ट थिंग, द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, तो होल ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट एक कार्डियक साइकिल पूरा कंप्लीट कितना टाइम लेती है, 0.8 सेकेंड। द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल यहाँ लिख लेते हैं 0.8 सेकेंड टोटल। अब ये किस तरह से डिवाइड होता है इसमें, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट थिंग, स्टार्टिंग में क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग में क्या हुआ, देयर इज जॉइंट डायस्टोल, दिस फेज। ओके, इसका पूरा ड्यूरेशन है आपका 0.4 सेकेंड, एंड हियर 0.1 एंड हियर 0.3. So total duration of cardiac cycle is 0.8 second. Okay, so first thing, what do you mean by the word joint diastole? Joint diastole means relaxation. Joint मतलब joint होके, means here joint diastole means the relaxation of both atrium and ventricles. उस टाइम पे आपके ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों ही रिलैक्स होंगे। तो वो कब होंगे आपके, इन द स्टार्टिंग what happens, आपके ऑरिकल्स भी रिलैक्स है और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हैं। जो ब्लड आ रहा है ड्यू टू द प्रेशर जनरेटेड बाय द ब्लड, वो ब्लड आपका नीचे पास हो रहा है। ओके, तो जॉइंट डायस्टोल इज द रिलैक्सेशन
relaxation of both auricles and ventricles, so both auricles and ventricles. Okay, now what happened, ये आपका स्टार्टिंग में रहेगा, तो इसमें क्या है आपका, ये 0.4 सेकेंड है, 0.4 सेकेंड के लिए क्या होगा आपका, जो वेंट्रिकल्स है वो आपके रिलैक्स रहेंगे और ऑरिकल्स भी आपके रिलैक्स रहेंगे। अब यहां पर इस केस में क्या होगा आपका, ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ड है, ब्लड जो है आपका वो ऑलरेडी फिल्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, पैसिव फिलिंग, हियर पैसिव फिलिंग मींस पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स होगा। जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा कि इस कंडीशन में आपका पीछे था, यहां सी हियर, यहां पर क्या था, ऑलरेडी फिल्ड है बिफोर, अभी हम कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी क्या है यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड ब्लड है, ब्लड ऑलरेडी भरा हुआ है यहाँ पे पहले से, और विदाउट कॉन्ट्रैक्शन मींस विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, पैसिव फिलिंग मींस विदाउट एनी एनर्जी, वो अपने आप ब्लड आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, हियर पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, और एट्रियल फिलिंग, यहां पर क्या है, इस केस में क्या होगा, पैसिव फिलिंग हो रही है वेंट्रिकल्स की और एट्रियल फिलिंग हो रही है, एट्रियल फिलिंग भी हो रही है आपकी, एट्रियल फिलिंग, एट्रिया की भी फिलिंग हो रही है आपकी, एट्री जो ऑरिकल्स उसमें भी ब्लड आ रहा है और वेंट्रिकल्स में भी ब्लड आ रहा है आपका, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, विदाउट एनी फोर्स, ये अपने आप ही इसमें फिलिंग हो रही है, ठीक है। नाउ अब यहां पर, अभी इसकी यहां पर आ गए हम, नाउ फॉर अब जैसे ही आपके क्या होंगे, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे ही आपके ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कितने टाइम के लिए आपका, 0.1 सेकेंड, ये आपका क्या है, ऑरिकुलर, ये कॉन्ट्रैक्शन है आपका, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यहां पर क्या होगा आपका, ये यहां पर आपका है सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, यहां पर आपका एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा, ये है आपका एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है यहाँ पे आपका, तो एट्रियल सिस्टोल में आपका क्या है, यहां पर आपका एक्टिव वेंट्रिकुलर फीलिंग होगी, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है मतलब आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा इसमें, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा आपका, इसमें एक्टिव फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, यहाँ क्या होगा आपका चीजों, यहाँ पर एक्टिव फीलिंग, यहाँ लिख लिया, यहाँ पे इसमें हम एक्टिव फीलिंग, यहाँ क्या था, पैसिव फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स without any energy, but now here active filling means with the help, it needs the energy, active filling of ventricles, okay, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट है आपका इसमें अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां एक्टिव फीलिंग होगी आपकी, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहां पर, यहां क्या होगा, ये आपका हो गया कंप्लीट, यहां इसकी स्टार्टिंग में देखो, यहां पर, यहां इसकी स्टार्टिंग में नेक्स्ट फेज है आपका, यहां क्या हो जाएगा, यहां पर इसकी स्टार्टिंग में क्या आ जाएगी आपकी, लब आ जाएगी, यहां पर आपकी जो वॉल्व है, कौन सी आपकी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी यहां पर, ठीक है। अब यहां क्या है, यहां वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा आपका, यहाँ ये आपका 0.3 सेकेंड के लिए है, यहाँ क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, और वी कैन से यहाँ क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मींस क्या, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड कहाँ पुश होगा आपका, सेमिनल वॉल्व के थ्रू बाहर पुश हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर क्या होगा, एम्प्टिंग ऑफ ब्लड, यहाँ एम्प्टिंग ऑफ ब्लड यहाँ से ब्लड वेंट्रिकल से खाली होना शुरू हो जाएगा, एम्प्टी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी पूरी एक कार्डियक साइकिल। अब इसमें हम अगर इसकी बात कितना अमाउंट है उसकी बात करें हम, तो ब्लड ऑलरेडी प्रेजेंट वो आपका 60 ml था, ब्लड ऑलरेडी प्रेजेंट
इन वेंट्रिकल्स में जो ब्लड आपका ऑलरेडी प्रेजेंट था, ब्लड ऑलरेडी प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स, इन वेंट्रिकल्स, वो था आपका 60 ml। ठीक है, अब कुछ ब्लड आपका विदाउट कॉन्ट्रैक्शन आया एंड कुछ ब्लड आया आपका कॉन्ट्रैक्शन। ब्लड कम्स विद एंड विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, विद एंड ब्लड कम्स, ठीक है, ब्लड कम्स बाय कॉन्ट्रैक्शन विद, और सॉरी विद, comes with and without, ये ऊपर वाला हो गया आपका ये, ठीक है, with and without contraction, ओके। ये कितना आ रहा है आपका टोटल, ये आपका 70 ml आ रहा है, ये मिला के इन दोनों से, विद और विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, अपने आप जो आ रहा है और कॉन्ट्रैक्शन से आ रहा है वो आपका 70 ml आ रहा है। टोटल कितना हो गया आपका 130 ml हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये आपका कब है 130 ml, दिस वॉल्यूम इज एट द एंड ऑफ, दिस वॉल्यूम इज एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है, कि जब तक आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स हैं आपके, तो एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये आपका कब है आपका, दिस ब्लड वॉल्यूम इज व्हेन वॉल्यूम एट द दिस वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब जब तक आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स है, अभी आपके क्या है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोल सकते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ईडीवी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्या होगा, आफ्टर दैट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे, ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, नाउ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना होता है आपका 0.3 सेकेंड का था, हमने पीछे चार्ट में पढ़ा है। जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है आपका, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वो कितना है आपका 0.3 सेकेंड का है, ठीक है। उस समय क्या हो जाएंगी आपकी, सबसे पहले तो आपकी एवी वॉल्व क्लोज होंगी, एट्रीवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होंगी, तो उस टाइम आपकी कौन सी साउंड आएगी, लब साउंड आएगी। देन आफ्टर जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या होगा, ऑल द ब्लड पुशेस टुवर्ड्स आउटवर्ड, ओके, एंड आफ्टर relaxation the blood tries to come back, but at that time the semilunar valve get closed, and that time the sound comes is known as a dub, तो लब डब की साउंड आपकी इस तरह से आती है, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, देन वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएगा आपका। नाउ अब इसको हम अलग से एक चार्ट बनाए थे, किस तरह से आपका ये होता है, इसमें क्या क्या इसमें आपका कब सिस्टोल हो रहा है, आपका कब डायस्टोल हो रहा है, तो ये आपका अलग से बना लेते हैं, एक चार्ट और बना लेते हैं इसमें इस तरह से। देखो एट्रियम, पूरा 8 सेकंड को डिवाइड कर लेते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, सपोज 0.1, तो क्या हो रहा था आपका इसमें, अभी आपका क्या थे, दोनों में आपका क्या था, जॉइंट डायस्टोल था, तो जॉइंट अभी क्या था आपका 0.4 सेकेंड तक क्या चल रहा था, इसमें हम देखा था हमने, यहाँ इसमें देख सकते हैं, ये देखिए इसमें 0.4 सेकेंड तक क्या था, जॉइंट डायस्टोल। तो हम उस टाइम क्या था, आपके ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों ही आपके डायस्टोल पोजीशन में थे, रिलैक्स से, तो इसमें देख सकते हैं, इसमें आप देखिए इसमें जॉइंट डायस्टोल शॉर्ट में, यहाँ भी आपका जॉइंट डायस्टोल, सेम हियर, यहाँ पर आपका 0.4 सेकंड तक यही जाएगा आपका जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। यहाँ भी आपका जॉइंट डायस्टोल, यहाँ भी आपका
ज्वाइंट डायस्टोल, यहाँ भी आपका ज्वाइंट डायस्टोल जाएगा और यहाँ भी आपका ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, अब 0.1 सेकेंड के लिए, अगले 0.1 सेकेंड में क्या होगा आपका, नाउ व्हाट हैपेंस, द ऑरिकल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड बट एट दैट टाइम वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड, दे आर इन द डायस्टोल पोजीशन, सो ऑरिकल्स गेट, यहाँ पर आपका सिस्टोल हो जाएगा, सिस्टोल, सिस्टोल, ऑरिकल्स आर इन द कंडीशन ऑफ सिस्टोल बट वेंट्रिकल्स आपके अभी भी क्या है, डायस्टोल कंडीशन में है, डायस्टोल कंडीशन में, ओके, डायस्टोल कंडीशन में यहाँ पे आपकी हो जाएगी आपका, यहाँ पर आपका जो इस पॉइंट में आपका ये जो है आपका इस कंडीशन में यहाँ जो आपका वॉल्यूम प्रेजेंट होता है वो होता है आपका 130 ml डायस्टोल के एंड में। यहाँ क्या हो गया आपका, डायस्टोल का एंड हो रहा है, दिस इज द एंड डायस्टोल, वेंट्रिकल्स का जो डायस्टोल पोजीशन है वो एंड हो रही है, उसके बाद में आपका सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। नाउ फॉर नेक्स्ट 0.1 नेक्स्ट 0.3 सेकेंड व्हाट हैपेंस, यहाँ क्या है आपका, ये आपके रिलैक्स हो जाएंगे, नाउ ऑरिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे आपके, मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डायस्टोल, 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 डायस्टोल। ठीक है, अब क्या होगा, आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर आपका सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, सिस्टोल, सिस्टोल एंड सिस्टोल, ओके, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब नाउ ये आपका 130 ml है, दिस इज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। नाउ व्हाट हैपेंस in the during contraction of ventricles, how much blood the ventricles pushes outwards, okay, अब क्या करेगा, जो वेंट्रिकल है वो ब्लड को पुश करेगा, कितना करेगा, 70 ml, 70 ml यहां से पुश कर देगा वो ब्लड को, ओके, दिस इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ सिस्टोल है वेंट्रिकल्स का, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, 70 ml हो जाएगा, तो 70 ml क्या हो जाएगा आपका, इजेक्ट करने वाला वॉल्यूम होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी साउंड भी आ जाएगी, यहाँ पे आपकी लब साउंड आएगी, यहाँ पर आपकी डब साउंड आ जाएगी, रिलैक्स हो जाएगा इसके बाद में। तो दिस इज अबाउट द कार्डियक साइकिल, आपके ये इसके जो अलग अलग इसके फेजेस हैं कि कितने सेकंड पे क्या हो रहा है आपका। अब कुछ और इसमें पॉइंट्स हैं, जैसे कि दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल में क्या क्या फेजेस होते हैं, क्या क्या इसमें पूरा 0.8 सेकंड का जो कार्डियक साइकिल है वो किस तरह से कंप्लीट हो रहा है, कहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कहाँ रिलैक्सेशन हो रहा है। सी हियर, हार्ट डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से कंप्लीट हुआ है इसमें। उसके बाद में देन नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल एंड ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, आई एक्सप्लेन्ड यू दिस इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। देन ऑल द different points of division of all seconds of cardiac cycle, किस तरह कहाँ सिस्टोल, किस पॉइंट पे सिस्टोल, किस पॉइंट पे डायस्टोल। एंड हियर we have already studied about the heart sound is also included in your syllabus, so heart sound is lub dub, okay, when lub comes at the end of diastole, here जब यहाँ डायस्टोल का एंड हो जाएगा आपका, जब आपकी लब साउंड आएगी, ओके, वेंट्रिकल्स का जो आपका डायस्टोल है, और जब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन आपका खत्म हो जाएगा, देन आपकी डब साउंड आएगी, लब साउंड यहाँ आएगी आपकी और डब साउंड यहाँ आएगी आपकी। दिस इज अबाउट हार्ट साउंड। नाउ नेक्स्ट सम पॉइंट्स आर देयर, स्ट्रोक वॉल्यूम, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, okay, so stroke volume, how you can define the stroke volume, the amount of blood, this is the amount of blood, the amount of blood pushed out, the amount of blood pushed out by each ventricles, pushed out by each ventricles during contraction, in one cardiac cycle, So this is stroke volume, or we can say SV, okay. So stroke volume
स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड, ओके, वो ब्लड का वो अमाउंट विच इज पुश्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल्स, ठीक है, जो वेंट्रिकल्स वो क्या कर रहे हैं, ब्लड भर गया है, देन वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, उसको फर्दर बॉडी में जाने के लिए और लंग्स में जाने के लिए उसको पुश कर रहे हैं, देन दिस अमाउंट ऑफ ब्लड इज नोन एज अ स्ट्रोक वॉल्यूम, ओके। और किसमें, एक कार्डियक साइकिल में, तो इसका अमाउंट होता है आपका 70 ml, दिस इज 70 ml आपका, ठीक है, SV 70 ml। तो इसको अगर हम SV को हम देखें इसमें, तो SV इक्वल्स टू आपका EDV, EDV माइनस आपका ESV, ओके। EDV क्या आपका, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या था आपका 130 ml, एंड ESV एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम आपका 60 ml था, 60 ml, ठीक है, उससे आपका आ सकता है 70 ml। दिस इज स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट टर्म इज, नेक्स्ट आपका टर्म आता है इसमें, यू नो हार्ट रेट, you know heart rate is 72 beats per minute, means in 1 minute one heartbeat means one cardiac cycle, means 72 cardiac cycle you have to complete in 1 minute, 72 cardiac cycle has to complete, okay। एक one heartbeat equals to क्या होती है आपकी, वन कार्डियक साइकिल, ओके। क्या हो जाएगा आपका इसमें, इसकी हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कैसे निकालेंगे, इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ये इस तरह से 70 ml, ओके, 70 ml इंटू आपका क्या हो जाएगा, ये 72 कितनी हो गई आपकी बीट्स पर मिनट, एक मिनट में 72 बार बीट्स कर रहा है, और वॉल्यूम कितना पर साइकिल में कितना वॉल्यूम ले रहा है, ये 70 ml ले रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 5040 ml ब्लड और अप्रोक्स 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर ऑफ ब्लड हो जाएगा आपका। तो ये क्या होता है आपको, इसको हम बोलते हैं टोटल, इसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, टोटल कार्डियक आउटपुट क्या होता है आपका, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो ये आपका कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे कार्डियक आउटपुट को, तो हियर कार्डियक आउटपुट हाउ विल डिफाइन द कार्डियक आउटपुट, ये आपके इसमें हो जाएगा द अमाउंट ऑफ ब्लड ejected from the left ventricles, by the aorta, left ventricles into the aorta, from the ventricles into the aorta towards the body, ठीक है, into the aorta। तो ये आपका क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट हो गया, CO होता क्या है आपका, ये कार्डियक आउटपुट हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट आपको पता है 72 बीट्स पर मिनट होता है, तो ये कार्डियक आउटपुट हो गया। तो ये कुछ टर्म्स है आपके इसमें, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया आपका, जो अमाउंट कितना अमाउंट ये इजेक्ट कर रहा है बाय वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। नाउ ये आपका क्या हो गया, हार्ट रेट हो गया, हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट होती है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या होता है आपका, ये आपका कार्डियक आउटपुट भी बोल सकते हैं इसको, तो ये आपका 5 लीटर आ जाएगा इसमें। कार्डियक आउटपुट क्या होता है आपका, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो ये क्या होता है, इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू आयोटा में कितना ब्लड आपका जा रहा है पूरा आयोटा में, ओके।
अब एक आपका आता है इसमें, एक टर्म आता है आपका हर्ट साउंड, हमने पढ़ लिया हर्ट साउंड क्या होता है, हर्ट साउंड, हर्ट साउंड ये क्या आता है आपका, लब एंड डब। यू नो द टाइमिंग ऑफ हर्ट साउंड कि कब आपका लब होगा, कब आपका डब होगा, लब डब, ठीक है। हर्ट साउंड इज ऑल्सो नोन एज अ ऑस्कुलेशंस, ऑस्कुलेशन, हर्ट साउंड इज ऑल्सो नोन एज ऑस्कुलेशन, ऑस्कुलेशन भी बोलते हैं हर्ट साउंड को। तो ये क्या होता है, इसमें आपका ऑस्कुलेशन वर्ड होता है, ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, द एक्ट ऑफ लिसनिंग, the act of listening, this is the osculation term is the act of listening, listening to sounds, listening to sounds within the body, sounds within the body, ठीक है। और ये किससे की जाती है आपकी, ये विद द हेल्प ऑफ, जो आपकी फर्स्ट साउंड होती है इसमें, ये जो लब होती है आपकी फर्स्ट साउंड, फर्स्ट साउंड, और सेकेंड साउंड जो होती है धक 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 होता है ना, तो धक धक, तो फर्स्ट साउंड आपकी लब एंड डब इज सेकेंड साउंड, सेकेंड साउंड आपका, ठीक है। और ऑस्कुलेशन क्या होता है, ऑस्कुलेशन इज द एक्ट ऑफ लिसनिंग टू साउंड्स विद इन द बॉडी, बॉडी में जो इस तरह की साउंड आ रही है आपको, उसको लिसनिंग की लिसनिंग कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, ऑस्कुलेशन। ये किसकी हेल्प से होता है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, okay. So this is all about the, today we have discussed about the cardiac cycle, the phases of cardiac cycle, the duration of cardiac cycle, और उसके बाद में हमने क्या किया था, हार्ट साउंड पढ़ी है, इसमें हार्ट साउंड्स क्या होती है एंड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द कार्डियक साइकिल, okay. Now in the next lecture we are going to discuss about the ECG. Thank you.